नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का अनुपमा का एपिसोड कल से थोड़ा बेटर था। कल तो थोड़ा अलग ही लगा, जो हम लोगों ने शेयर भी किया, आपने भी रिव्यूज़ भेजे, मैंने भी बातें की। आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ था जिसके ऊपर बातें हुई आज पूरा दिन। अब बारी है आपके रिव्यूज़ की, तो सुनते हैं आपके रिव्यूज़, क्या क्या आपने कहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज़ हैं भाई आपके। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं क्या कहते हैं आप। Hello and good evening, Anju ma'am, and to all the members and the fans. Hi to you all. I had a great vacation, and I'm tan. Totally, my skin is peeling. It was a nice warm vacation. However, when I came back, it's snowing and it's very cold here, back in Canada. And Anju ma'am, I liked your background. I think you're on a vacation too. Enjoy your vacation. And I wish I was there at your place. It looks so warm and cool. And I'm freezing here. Anyhow, I saw the episode today of Anupama, and where she has a reunion with her grandchildren and her daughter-in-law in Kavya and her father-in-law. There is like an emotional moment going on between them, and how she's happy to see her grandson for the first time, and all the family drama going on, and she talking to her father-in-law about how she wanted to tell him how she felt and all that, and then that emotional drama thing going on. I just don't know why Anupama is not getting involved in everything there. And then how she met all her the grandchildren, Kavya's daughter. She hugged them and she was happy to see them. She welcomed her other daughter-in-law, Timpi, and Kavya. And then the scene goes to where Adya, Shruti, and Anuj are together, and Adya asks for a sleepover for her friends, and she says that boys are also going to be there, and Anuj says, I'll drop them in the evening, but I don't want them staying here. And then Adya gets upset and say, why are you behaving like an old school pop? And then Shruti says, it's okay, I'll manage it. And then she holds Anuj's hand and says, where you're going? I miss you. Says, Anuj, going to the office. What are you going to miss me for? And he feels very uncomfortable when she's holding his hand. He just pulls his hand out and goes. And then Shruti says, it's okay. There's a half glass which is full also. I think she's expecting that she can gain his love. And then after that, Ardhya, I think Anupama's daughter is talking to Adya, thinking it's a client, and then they bump into each another, and then they start clashing with anger on each another. And then both Adya and Pinky get into a heated argument, and then Adya says, oh, so now she's also here. So Anupama now wants to show off that all her family is here. She's got them now. And then Adya starts shouting at Sweetie, and then Shruti comes and says, why are you shouting? And then she says, I hate some people. And then they keep arguing at each other. So it's like one head on another head. Both of them are arguing together. But the Sadia is too so disrespectful for her age. And then Shruti says sorry and takes her and goes. However, Sweetie doesn't know that is that Choti. So like Anupama did not know seeing her the first time. And then Anupama goes back to work and tells her boss, Deepu, that
we can organize a festival for the color festival. And then he says okay, and then his mom calls and says, did you tell Anupama about the situation in our restaurant? And he says, no, not yet. And then Kavya and Timpi come to visit her, and they talk, and then 10 minutes she takes a break. And then now Anupama is getting too involved. The Shah family has come. That's it now. Her life is going to be hell. When is she going to realize this? And I saw then the pre-cap. Then it went to the pre-cap. In the pre-cap, they show that there's this festival going on, and then Adia loses her temper and starts misbehaving again. And then she pushes Anupama while trying to leave the place, and Anuj leaves her hand to save Anupama, but Deepu saves her. And then Ardhya says, my pop left my hand for her. And then it goes to the other pre-cap also of the goons have kidnapped Kinjal and the little one. And then she asks to call Toshu right now. Let's see what happens, but I'm not liking the show nowadays. I do not know where the story is going, and I'm very disappointed in Anuj and in Anupama. Anupama needs to really realize what her priorities are. However, thank you so much, Anju ma'am, for the platform. Thank you for everything, and I'm sorry I sent the video late yesterday. Have a good night all. Bye bye. हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में देखा माना मैं अनुपमा का शाह परिवार में जाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बार बार बेइज्जती, और इनमें से कभी किसी ने अनुपमा की साइड नहीं ली, अनुपमा को रोका नहीं, अनुपमा को इन्हें किसी ने भी सामने आके ये नहीं किया। इसलिए मुझे उन लोगों से मिलना वाकई में मुझे भी बुरा लगता है। पर आखिर अनुपमा के इमोशन है, अभी अनुपमा खुद होके किसी को कॉल नहीं किया, किसी से बात नहीं करने की कोशिश की, कुछ नहीं किया। पर अब जैसे परिवार आ जाता है तो एक औरत इमोशनल हो जाती है। जैसे वो अब दादी है, माँ है, तो नहीं कर पाती, बेटी भी है, बापूजी के लिए प्यार है तो वो नहीं कर पाती। तो आज वही दिखा मैं कि वो एक मैंने और अंश के समर के बेटे को देखना चाहती, खास उसने आज ज़्यादा भर मुझे उसमें दिखा ना समर के बेटे के लिए। हाँ, वो माई के लिए भी थोड़ा सा यानी उससे भी प्यार करती है, ईशानी के लिए भी करती है, पर बार बार उसका समर का बेटा वो ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा था। और बापूजी बाकी सबसे मिली, डिम्पल और सबसे मिली, वो वैसा नहीं कह रही मैं, अनुपमा ऐसा करती नहीं, पर हाँ मुझे लगा थोड़ा। और ठीक है, अभी वो जो दिखाना था वो तो दिखा ही रहे, तो हम कितना भी बोले तो शाह परिवार को झेलना है हमें। पर यहाँ पे अनुपमा, जैसे आज बापूजी ने फिर से वही बात की, उसे वही सब कुछ बताया, परेशानी बताई है ना उसको। वो एक तरफ बापूजी बोलते हैं कि उलझाएंगे नहीं, तुझे नहीं उलझना है रिश्ते में तो नहीं उलझाना है। जैसे कहते थे कि वहाँ जाके मेरी बेटी को परेशान मत करना, यानी सारे बात वनराज को बताई, बा को बताई, सब बताया कि उसको ये नहीं पता चलना चाहिए, उसको वो नहीं पता चलने, पर आज अपनी हर सबकी बता रहे कि तू अकेली नहीं है, बाकी के लोग भी अकेले हैं परिवार में रह के। ये सब बातें बापूजी क्यों बताना चाहते, क्या चाहते हैं बापूजी? अनुपमा की मदद चाहते, तेरी मदद चाहिए तो किस बात की मदद चाहिए? मुझे नहीं समझ में आया बापूजी ने क्या बोला। अनुपमा वो सीन बताया नहीं, पर हाँ मुझे लगता है शायद बापूजी होली के लिए तो नहीं कह रहे कि होली का त्यौहार मनाते हैं हम लोग, शायद ये बहुत यानी परिवार है, ये ऐसा मुझे लगा। पता नहीं बापूजी के क्या मन में चल रहा है, क्योंकि अनुपमा ने जैसे रेस्टोरेंट में आ रही तो वो होली के इवेंट के बारे में बात की नहीं यशदीप से, तो उससे लगा मुझे कि शायद बापूजी होली के लिए बोले क्या, पर अच्छा नहीं लगा बापूजी का वो। बस एक पोस्टर वाली बात अच्छी लगी कि तेरे भी नाम के में आ रहा था, तो मैं बड़े बड़े पोस्टर देखे तो तेरा भी नाम का ऐसा बड़ा पोस्टर हो, जोशी बहन का है ये, वो सब ठीक लगा। तो ये कहीं ना कहीं बापूजी की बात बोलना एक हिंट है ना कि कहीं ना कहीं अनुपमा के नाम के पोस्टर लगेंगे, अभी लगेंगे ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि अब वो सीरियसली इवेंट को लेके या सीरियसली स्पाइसी चटनी पे जो अभी संकट आया है स्पाइसी चटनी पे, तो वो ऐसे ही नहीं अनुपमा
ये करेगी अनुपमा, वहाँ पूरे जाल लगा देगी अपने उस रेस्टोरेंट को बचाने के लिए, क्योंकि अनुपमा का रेस्टोरेंट बना बंद करना है सिर्फ उसी के लिए नहीं, पर बाकी के जो कर्मचारी हैं, उनका भी तो रोजगार जाएगा, उनकी नौकरी जाएगी। और उसके ऊपर यशदीप के और विजय के इतने उपकार जो उस पे है, तो ये उपकार के लिए नहीं करती अनुपमा, फिर भी करती है, ये तो दिखता है। तो यहाँ वो पोस्टर लगने वाली बात है कि कुछ बहुत बड़ा अरेंज करेगी अनुपमा, जैसे वो दिया के साथ मिलके। मुझे दिया के साथ तो लगता ही है, बट यहाँ में जो टीटू का आना भी अमेरिका ऐसे नहीं होगा, टीटू भी इवेंट के लिए आ रहा है, टीटू भी अपने कार्यक्रम के लिए आ रहा है, यहाँ पे उसके जो कार्यक्रम है वो उसके लिए आ रहा है। तो यहाँ शायद उसी प्रोग्राम में अनुपमा भी जाएगी, ऐसा कुछ लगता है मुझे कि टीटू से ऐसे अनुपमा मिलेगी। तो इस टाइप का होगा, मुझे ऐसा लगता है। हर वो शायद बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़े पोस्टर लगेंगे उसके नाम से, और बहुत बड़ा डांस है, तो उसमें बहुत सारा अनुपमा को उससे पैसा मिलेगा जो भी होगा। या फिर अभी वो रिस्पर्सन चट्टी के स्टॉल भी लगाएगी, जैसे इवेंट है तो उसमें दिखा नहीं रहा, वो तो सेलिब्रेट हो रहा है, पर हो सकता है इसने इवेंट की बात की तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो कैसे भी करके वो इस टाइप का करेगी, कुछ हद तक एक लोन की रकम देगी ताकि एक मोहलत मिलेगी, क्योंकि एक साथ पूरा तो पॉसिबल नहीं लगता मुझे, बट यहाँ कुछ ना कुछ इसको ये मिलेगा, एक कुछ यानी एक टाइम मिलेगा, लिमिट मिलेगा कि अब बाकी का भी इतने समय में, तो फिर उनका बिजनेस चाय और इसका मसाला चाय भी चलेगा। ये सब मुझे लगता है कि इस टाइप का अनुपमा ऐसा कुछ करेगी दीपू के साथ मिलके, बाकी के लोगों के साथ मिलके। तो यहाँ ये मुझे लगता है पोस्टर वाली बात जो बापू जी ने डाली है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे है। दूसरी बात है कि आज आद्या और पाखी आमने सामने होगी, टकरा गई। पाखी ने पहचाना नहीं आद्या कौन है, फिर भी वो उसकी बदतमीजी की एक लेवल दिखती है, पर आद्या जानबूझ के बकवास करी थी। उसके पहले तो उसने देखा भी नहीं था, जैसे वो टकराई थी ना, तो वो बिना देखे उसको बोलती कि आर यू मैड। तब वो देखती कि अरे ये तो पाखी है। तब ये मुझे कहना था कि तो बदतमीजी पहले से ही, जैसे उसने यशदीप के साथ बदतमीजी की, उसने विक्रम के साथ बदतमीजी की, अनुपमा का तो समझ में आता है कि अनुपमा से नफरत कर रही इसलिए। तो ये बदतमीजी भाई इसने कहाँ से सीखी, बाकी के लोगों के साथ बदतमीजी करने का क्या लाइसेंस है, क्या सीखी है? तो बहुत सीधी सी बात है कि इसको कभी सिखाया ही नहीं गया। अनुज पैम्पर करता है क्या, और आद्या, और हमेशा क्या होता है कि श्रुति जो करती है ना, मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी, और उसे पूरी आंख बंद करके भरोसा करता है अनुज। तो यहाँ ये सवाल एक माँ पे ही उठता है, जैसे माँ की बात निकली थी आज, वो पाखी और दो इसने कहा ना तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया क्या, उसने कहा तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया क्या, जो भी बोलती है। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि यहाँ माँ के ही इस पर सवाल उठेगा। और अनुज और इधर इसका दिखाया, तो पहले मुझे लगा कि अगर ये सीन दिखाने के पीछे भी कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सीन नहीं दिखाएंगे अनुज और श्रुति को, इन लोगों को दिखाने के लिए। बट यहाँ पे जैसे वो कहती है ना कि डे नाइट में जो पार्टी होगी है, वो जो स्लीपिंग जो होगा, ओवर नाइट स्लीपिंग क्या क्या बोलते हैं ना उन लोगों का, तो वो सब जो होगा, तो उसमें शायद अनुज ऐसा कुछ उसको दिखेगा, या फिर ऐसा कुछ हो, जैसे बार बार हिंट कर रहा है कि लड़के भी आएंगे क्या, बॉयज भी आएंगे क्या। अनुज की इच्छा नहीं है, पर श्रुति ने उसको एग्री कर लिया और श्रुति ने उसको बना लिया। तो यहाँ वो कहीं ना कहीं मिस कर रही है ना, जैसे श्रुति जिस टाइप से उसको बढ़ावा दे रही ना, तो उसको बहुत हल्के में लेगी, और वो बात शायद अनुज को अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनका दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है, ये दिखा सकते हैं कि श्रुति को बोल सकता है ये कि तुम ये कर क्या रही हो, तुमने तो कहा था, या फिर तुम्हारा कहाँ ध्यान है। ये सब ऐसा एक मन में आ जाएगा, बोलेगा नहीं पर मन में आ जाएगा। और दूसरी बात, ये मन में ये बात उसके मन में रह जाएगी, अनुज के बोल नहीं पाएगा, मुझे लगता है बोल नहीं पाएगा। और उसके बाद होली होली पे तो धमाका है, क्योंकि होली पे जैसा हमने देखा आद्या ने जिस तरह से हरकतें की, अनुपमा को धक्का देना, फिर गिरना, और उसका फिर हाथ छोड़ देना, और उस अनुपमा को बचाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे वो बात एक और हो जाएगी, आद्या चिढ़ेगी, चिल्लाएगी कि जैसे उसने कहा ना कि पॉप्स ने मेरा हाथ छोड़ दिया इनके लिए मेरा हाथ छोड़ दिया पॉप्स ने, तो जरूर बोलेगी कि पॉप्स आपने उनका है मुझे छोड़ दिया, ऐसा वैसा जो भी बोलेगी ना आद्या। तो यहाँ अनुपमा चुप रही रहेगी, वो बदतमीजी पे जरूर अनुपमा उसको डांटेगी, बहुत डांटेगी। और यहाँ पे शायद बा भी अपने आदत के अनुसार बोलेगी कि ये कैसी परवरिशी दी श्रुति तूने, हमारी अनुपमा ने तो कभी ध्यान नहीं दिया। वो बोलेगी बा है ना, अनुपमा को अभी अपने फेवर में लेने के लिए, अनुपमा का ऐसा जैसे उसका इनका नाटक रहता है ना कि अनुपमा को अपने पास कितना रखे क्या रखे। तो यहाँ बा अपने ही धुन में जो बोलती है, हमेशा देखती है बा बिना सोचे समझे बोलती है, तो बा भी इस बात को बोलेगी कि श्रुति तूने सिखाया क्या। बाकी बोलेगी उस दिन मुझसे भी बड़ी बदतमीजी की इसने,
ये टकराई तो ये अच्छा, अच्छा तो ये है। बाकी को भी पता चलेगा कि आद्या ही छोटी है, तो बोलेगी इससे तब भी मुझसे ऐसी बदतमीजी की थी। तो शायद यहाँ अनुज का लाइट जल सकता है, ट्यूबलाइट, कि हो क्या रहा है, पर कर कुछ नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा, अनुज वहां तक जाएगा नहीं। तो यहाँ श्रुति के परवरिश पे सवाल उठेगा। बात ये होगी कि आध्या यहाँ बदल सकती है, आध्या बदलने के चांसेस है, क्योंकि अनुपमा अच्छी डांट लगाएगी उसको कि तू पापा पापा करती है, तेरे पापा तेरे लिए इतना करते, तू क्या करती, तुमको उनको इतना बेइज्जती करती। बेइज्जती अनुपमा कभी से नहीं। अरे वनराज शाह की बेइज्जती सहन नहीं करती थी जब वो उन लोगों को बोलती थी, तो तू अपने पापा से ऐसी किसी बातें करती, हमेशा वनराज का फेवर लेते हुए दिखा। तो मुझे यहाँ लगता है कि अनुपमा भी, अगर पाखी अद्या ने अगर बदतमीजी की ना मुझसे, तो वो जरूर उसको भी बोलेगी कि तू कर क्या रही, तेरे पापा तेरे लिए सबसे पहले तेरे को रखते, सबसे पहले, किसी और को नहीं। आज तेरे लिए अपनी जिंदगी भी खुश है ना, सच में बोलेगी अनुपमा, ये अगर बोलेगी ना, तब यहाँ शायद आध्या को अपना अक्ल आएगी, कम से कम किसी और के लिए नहीं, अनुपमा के लिए आएगी कि नहीं पता नहीं, पर शायद अनुज के लिए आ जाए, अनुज के लिए आ जाए। और जब तक समझेगी सब कुछ, समझते समझते शादी मंडप तक पहुंचेगी, फिर वहाँ पता नहीं अब क्या होगा। वहाँ यहाँ शादी आध्या करेगी या फिर शुतु खुद ही ये बताएगी कि कोई फायदा ही नहीं है, मुझे अब कोई समझ नहीं रहा, कहीं कोई प्यार नहीं है। और जैसे अनुज को भी अच्छा नहीं लगेगा श्रुति के साथ ये जो श्रुति कर रही है, या फिर उसका तो प्यार है ही नहीं, आई लव यू भी बोल नहीं रहा वो, तो ऐसा हो सकता है। मुझे उम्मीद है ऐसा कि ये ऐसा इस टाइप का होगा, वो शादी नहीं जाएगी, मंडप तक बात जाएगी, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो शादी होगी नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड हेलो टू एवरीवन। आज का शो ओके ओके था, वही मिलना मिलाना हो रहा था। अनुपमा खुश थी कि उसने सबसे मिल लिया। पाखी वही सेम एटीट्यूड और वही लड़ना झगड़ना। पाखी से जब पूछते हैं कि अधिक को भी लाना चाहिए था, ईशानी बता देती है कि उसके मम्मी पापा साथ साथ नहीं रहते हैं। अनुपमा वनराज को देखती है, उसका बिहेवियर माही की तरह, वो उसे समझते देर नहीं लगती, क्योंकि उसे पता था इंडिया से ही जब माही पैदा नहीं हुई थी, वनराज उसे अपनी बेटी मानता ही नहीं है। बापूजी बता देते हैं अनुपमा को कि वनराज क्या कर रहा है डिम्पी और काव्या के साथ। आध्या पाखी को फ़ोन आ जाता है और वो बाहर निकल जाती है। फ़ोन पे बात करते करते वो आध्या से टकरा जाती है। आध्या तो पहचान जाती है कि पाखी है, लेकिन पाखी नहीं पहचान पाती और दोनों में बहुत झड़प होती है। चलो, पाखी के मुंह से ये तो निकला कि मेरी माँ के ऊपर मत जाना। आध्या, माय गॉड, इतनी उसके अंदर नफरत है, क्या क्या बोले जा रही थी वो। शी वॉज टू मच। और अनुपमा स्पाइस एंड चटनी अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है और देखती है यशदीप परेशान है। उससे पूछती है, लेकिन यशदीप कुछ नहीं बताता। तो अनुपमा होली फेस्टिवल का एक सजेशन रखती है एंड यशदीप एग्रीज टू इट। प्री कैप दिखाते हैं कि होली का दहन हो रहा है और सब वहाँ पे पूजा पे मौजूद हैं। अनुज भी होता है, श्रुति भी होती है और आध्या भी। आध्या देखती है कि ये सब यहाँ पे हैं एंड उसकी वही नफ़रत फिर से, और श्रुति को कहती है कि चलने के लिए, अपने पॉप्स को भी कहती है एंड इतनी बुरी तरह से धक्का मारती है अनुपमा को और वो गिरने वाली होती है। अनुज उसको बचाने की कोशिश करता है, उससे आध्या का हाथ छूट जाता है। आध्या कैसे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दिया मम्मी को बचाने के लिए। लेट्स सी कल क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और कुसुम जी, आपका वैष्णो देवी की यात्रा सफल रही, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अंजू जी, आज का एपिसोड, चलो है सच में आज का एपिसोड कल से थोड़ा अच्छा था। अनुपमा का अंश का मिलन सच में बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से अंश ने दादी कहा और दौड़ के अनुपमा से लिपट गया, बहुत अच्छा लगा। आज उसे लगा कि मैं अपने समर से ही मिल रही हूँ।
और जिस तरीके से उसने बकुड़ा कहा, इतने दिनों के बाद हमने बकुड़ा नाम सुना है। काव्या और डिम्पी भी अनुपमा से मिलकर खुश हुए। आज फिर से वही अनुज दिखा अपनी बेटी के लिए पॉजिटिव होते हुए, जो लिप के बाद दिखाया था। और ये श्रुति अनुज के गले पड़ रही है। अनुज को उसका टच करना भी पसंद नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ रही है। वो उसे आई लव यू कह रही है, वो टेक केयर बोल रहा है। और मुझे बताइए, अनुपमा को शादी का कार्ड दे के आई तो भाई तुम मेन्यू हॉल देखने जा रही हो, तो तुमने कार्ड छपवाया कैसे? बिना मेन्यू के और बिना हॉल देखे हुए ही कार्ड छपवा दिया क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है श्रुति का। और जितना अभी वो आध्या को पैम्पर कर रही है ना, बहुत पछताएगी। और एक न एक दिन ये आध्या भी कुछ न कुछ तो गलत कांड करेगी ही करेगी। तब देखती हूँ अनुज कपाड़े इसको माँ होने का माँ बोल रही थी ना वो खुद को कि मैं देखूंगी, मैं ध्यान रखूंगी। देखते हैं तब अनुज इसे क्या जवाब देता है श्रुति को। पकड़ लो, दोनों बहनें मिली, दोनों ही बदतमीज। अरे पाखी, ये वही छोटी है, तुमने नहीं पहचाना लेकिन उसने तुम्हें पहचान लिया। इसलिए बोल रही थी तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये ऐसी क्यों बोल रही है। और सही कहा, भले ही पाखी ने अनजाने में कहा लेकिन सही कहा। क्या अनुपमा ने सही कहा, पाखी ने सही कहा कि अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई है। अब आएगा मजा, दोनों ही बदतमीज और एहसान फरामों से। पाखी आद्या को जब भी सोचना है उल्टा ही सोचना है। मम्मी ने बुलाया होगा, पापा की शादी है, उनसे ये बात हजम नहीं हो रही होंगी, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को बुला लिया ये कहने के लिए कि देखो मैं कितनी खुश हूँ। जब भी सोचेगी उल्टा ही सोचेगी। मम्मी को जलन हो रही है पापा की शादी से, इसलिए अपने परिवार को यहाँ बुला लिया। अरे पहले सब पता तो करो, उसके बाद कुछ भी बोलना। जब देखो तब अपनी माँ पर इल्जाम लगाती रहती है। वैसे छोटी ने जो कुछ भी कहा पाखी के बारे में, मजा आ गया कि ये यही डिजर्व करती है, ये जैसी है उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। सच में मुझे बहुत मजा आया ये सीन देखकर। दोनों की पहली मुलाकात बढ़िया रही। जब भी दोनों टकराएंगे तब तमाशा देखने में मजा आएगा। यशदीप जी परेशान है। तब बिजी का फोन आना, अनुपमा आ गई। तो कोई परेशानी है क्या? तो वो छुपा गए कि आप अपने परिवार से मिले। हाँ, सबसे मिली, अच्छा लगा। उसी वक्त वो बोले मैं अंदर जाके, जो होलिका वो कहती है कि हम एक इवेंट करते हैं और मैं सबको बता के आती हूँ। ठीक है, आप बताइए। तब बिजी का फोन आया। बिजी और यशदीप जी दोनों ही परेशान है। दोनों ही स्पाइस एंड चटनी बंद होने जा रहा है। यशदीप को बताना चाहिए था अनुपमा को। भाभी जी ने कहा तुमने बताया अनुपमा को? तो नहीं, बता देना चाहिए था बेटा। ठीक है, होली के बाद बता देना। बता देती तो अनुपमा सच में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती। और मुझे पता था काव्या और डिम्पी दोनों अनुपमा के पास जाएगी। स्पाइस एंड चटनी। अब बैठे तो बोले मैं पहले 10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, यशदीप सर से पूछ के आती हूँ। हाँ, हम लोग अब भी मिले उनसे, बहुत अच्छे। हाँ सर, बहुत ही अच्छे। लो चाय लेके आई, बैठे तीनों और कहा सच में तुम्हारी लाइफ बहुत ही इंस्पिरेशन वाली है, तुम्हारी कहानी। हाँ मम्मी, आपसे हमें इम्प्रेशन मिलती है। तो तुम लोगों की कहानी का क्या? अब वहीं पे ख़त्म हुआ है। आज का एपिसोड ठीक ठाक था। ये अच्छा नहीं, ये आद्या नहीं सुधरेगी। अगर यशदीप जी नहीं पकड़ते तो शायद वो उसी होली के आग में गिर जाती। लो, गुंडे किंजल को उसी के घर में बांध दिया है, फिर भी वनराज शाह को शर्म नहीं आती है। और ये कितनी बदतमीज है ये आद्या, ना अच्छे संस्कार दे रही है श्रुति। इस बुलडोजर पाखी को देखकर तो हर किसी का खून खौलता है। तो आद्या क्या चीज़ है? ये इवेंट स्पाइस एंड चटनी का है। वहाँ अनुज, आद्या और श्रुति आए हैं
अनुपमा ने तो नहीं बुलाया। जो इतना बदतमीजी कर रही है उसकी वजह से अनु गिरने वाली थी। मन में कह रही है पॉप्स ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो इसका हाथ थाम कर कौन सा खुशी मिली है आज तक अनुज को। ये नहीं सुधरेगी। आद्या को डांटना चाहिए था। ये गलती पर गलती कर रही है। अनुज उसको बढ़ावा दे रहा है। पाखी, तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आई और वो तुम्हें याद रखे? क्यों भाई? बदतमीजी में तो तुम पहला नंबर पे हो। माँ की तो इज्जत करती नहीं हो। और आज पता चली गया अनुपमा को कि पाखी और अधिक का डाइवोर्स हो गया। क्या बात है, बच्चों ने कितना मस्त बात बोला कि बुआ आप जब देखो तब झगड़ा करती रहते हो। वहां पे भी झगड़ा करती थी, यहाँ पर भी झगड़ा करती हो। किस तरह से इंसानी को डांट रही है कि एक थप्पड़ मारूंगी इसको ना। इसकी हेकड़ी तो अनुपमा ही निकालेगी पाखी की। और आज आपका और आज आपने जो सुबह अनुपमा ने कसी शैतान बच्चों के खिलाफ कमर, तोशु से पहले आद्या का नंबर, और ये अनुपमा है। परी पैदा होने पर तोशु की पोल खोल दी थी, तब तेरा लिहाज नहीं किया तो अब क्या ही करेगी। किंजर अपने ही घर में गुंडे उसी के घर में घुसकर उसे बांध दिया है। अनुपमा ने पहले ही अपना नमूना दिखा चुकी है। जब आद्या घर से भागी थी और जब अनुपमा ने उसे रेस्क्यू किया था, और पहले तो अनुपमा पे चिल्लाई, अनुपमा को भला बुरा गया। जब उसने अनुज के बारे में बोला तब अनुपमा ने फटकार लगाई थी। तब उसने अनुज की डिसरिस्पेक्ट की थी, तब उसकी बैंड बजाई थी। इस बार भी अनुज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बार उसकी बेइज्जती माफ भी कर दे, लेकिन अनुज की बेइज्जती कभी माफ नहीं करती। माँ बाप को मरे हुए अभी कुछ दिन पहले हुई है माँ बाप की डेथ, लेकिन इसे देखो ना, जरा भी दुख नहीं है। जब जब अनुज हाँ, इसने कार्ड कैसे छपा है वही समझ में नहीं आ रहा है। और सच में आद्या कहीं गलत संगत में ना पड़ी हो तो बहुत अच्छा होगा। ये आद्या कितनी बदतमीज है। अनुज कुछ कहता क्यों नहीं? अनुपमा के बच्चे कितने भी बदतमीज थे लेकिन कभी अनुपमा को धक्का नहीं दिया, और ये अपनी माँ को धक्का देके जा रही है। ऊपर से उसे 1% का भी गिल्ट नहीं है कि उसने क्या किया है। अनुज हाथ पकड़ने जा रहा था लेकिन उस अनुपमा का हाथ अपने पास था, वो चाहकर भी उसका हाथ नहीं पकड़ सकता अनुज। अच्छा हुआ दीपू जी ने पकड़ लिया। तुम अपनी माँ को धक्का दो और ये तुम्हारा हाथ पकड़ के रखे। क्या सोच है इतनी सी लड़की की? तुम्हें पता नहीं है कि ये अनुज अनुपमा के लिए क्या कर सकता है। वेट एंड वॉच। और सच में बापूजी अनुपमा को क्यों फिर से सारी बातें बता रहे? बापूजी, आप लोगों की वजह से उसका घर टूटा, इतना कुछ हो गया, फिर भी आपको फिर से उसी सह परिवार के मामलों में उसे घुसाना है। कहते सच में बापूजी ना, एक पल के लिए सच में मुझे गुस्सा आया बापूजी पर। अरे आपके घर की प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व कीजिए, अनुपमा क्यों करे? और एक बात तो है, जब सीरियली अनुपमा है और स्टार्टिंग ही शाह परिवार से हुई है और कपाड़िया परिवार, दो ही परिवार है, तो यही कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है, उससे बाहर तो नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, हम अनुपमा को सक्सेसफुल देखना जरूर चाहेंगे और वो होगी, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर राजन साई जी ने और रूपाली गांगुली ने ये कहा है कि जब तक अनुपमा में कुछ नए ट्विस्ट आने वाले हैं और मीडिया वाले आके ये सारी बातें जो बाहर निकलती है, लीक होती है, उसकी वजह से उन्होंने कुछ दिनों के लिए अनुपमा सेट पे किसी भी मीडिया वाले को आने के लिए बैंड कर दिया है। कुछ दिनों के लिए है, जब तक इसमें ट्विस्ट और टर्न्स नहीं आ जाते तब तक।
मुझे आज का बेस्ट सीन पाखी और आद्या का लगा। क्या झगड़ा था दोनों का। और सच में मुझे श्रुति बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अनुज उससे प्यार भी नहीं करता, समझती भी है, फिर भी उसके ऊपर जैसे टीनेजर जैसी हरकतें कर रही है। छी। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अब देखते हैं कल क्या दिखाते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। होलिका दहन के टाइम पे सब लोग वहाँ इवेंट में है और किंजल घर पर अकेली है। तब गुंडे आए क्योंकि वही कपड़े पहने हुए पिंक कलर की साड़ी दिखाई है और काव्या के भी वही कपड़े, इसलिए ये उसी रात होने वाला है, होलिका दहन के दिन। अब देखते होली में कौन से कांड होते, देखते आगे सीरियल। थैंक यू सो मच अंजू जी। और महिमा, सच में तुम्हारा ऑडियो बहुत अच्छा था। और तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी आवाज़ से लग तबीयत खराब है। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू अंजू जी। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक लगा। आज अनुपमा का बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगा। आज उसने समर के बेटे को देखा तो उसे अपने गले से लगाया और समर जैसी फीलिंग आई जैसे वो अपनी माँ से मिलता था। उधर पाखी की बदतमीजी फिर से अपनी माँ के लिए शुरू हो गई। इस लड़की का क्या ही कहें। चलो, माँ ने चुप तो कराया। काव्या और डिम्पी का अनुपमा से मिलना वो भी बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा का बापूजी से बातें करना और अनुपमा से कहना कि मैं तुमसे एक छोटी सी मदद मांगना चाहता हूँ। फिर से उसे रिश्तों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं बापूजी। एक तरफ अनुपमा कहती है कि मैं रिश्तों से दूर रहना चाहती हूँ। माना कि 5 साल तुमने अपने परिवार को नहीं देखा, ना ही उससे मिली। आज मिली हो तो चलो, माना कि प्यार आ ही जाता है परिवार को देखकर। पर आज बापूजी की बातें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी कि फिर से अनुपमा को उलझा रहे हैं। उधर अनुपमा भी कहती है कि मुझे भी जानना है कि आखिर क्या हुआ है इन सब की ज़िंदगी में। अभी भी तुम्हें शाह वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठना है कि जहाँ अपनी तरफ देखना है। इसी बात पर मुझे गुस्सा आता है अनुपमा पर कि इन शाह वालों की वजह से तुम्हारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। तुम्हारा अनुज, जो तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, तुम उससे दूर हो गई इन शाह वालों की वजह से। अब क्या ही कहें तुम्हें अनुपमा। उधर पाखी और आद्या का टकराना, दोनों एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। मुझे तो दोनों का दिमाग खराब हुआ लगता है। दोनों ही एक दूसरे की परवरिश पर उंगली उठा रही हैं। आज श्रुति का फिर से अनुज को आई लव यू कहना और अनुज से कोई भी जवाब ना मिलना, अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उसके साथ खुश नहीं है, तो क्यों बार बार अनुज का हाथ पकड़कर बार बार अपनी तरफ झुकाना। आज प्री कैम्प में देखा तो सब होली दहन कर रहे थे, तो आद्या का सबको देखकर, खास करके शाह परिवार को देखकर इतना गुस्सा करना, और गुस्से में उसने अपनी माँ को आग में धक्का दे दिया। अगर दीपू ना बचाता तो कुछ भी हो सकता था। उधर अनुज ने भी अनु को पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर आद्या को झटका लगा कि पॉप्स ने मेरा हाथ छोड़ दिया। उधर किंजल को गुंडों ने रस्सी से बांध रखा था और अनुपमा, डिम्पी और काव्या वहां आ जाती हैं। आखिर में मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि अनुपमा इन शाह की प्रॉब्लम को छोड़कर अपने रेस्टोरेंट पर ध्यान दे, जो बंद होने की कगार पर खड़ा है। अब अनुपमा को रेस्टोरेंट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन शाह वालों की प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। इन शाह वालों ने तुम्हें दिया ही क्या है कि जो अब भी तुम बापूजी की बातों में आकर इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ जाओगी। और उधर तोशु को भी तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढकर पुलिस के हवाले करना चाहिए, जो उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल सके, जो कि सज़ा उसकी बेटी और उसकी पत्नी भुगत रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मैम, श्रुति की एग्जिट होने वाली है इस शो से। उसका थोड़ा ही रोल बचा है और सुनने में भी आ रहा है कि वो ही मान को मिलाएगी। जब भी ये शादी का ड्रामा होगा, वो उस मंडप से उठकर अनुपमा को बैठाएगी। अभी तो ड्रामा बहुत होगा, अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट मान मिलकर रहेंगे। मान ही तो सीरियल की जान है। इनके बिना सीरियल देखने का मज़ा ही नहीं आता। जो इनका रोमांस हम देखते थे, सच में बहुत अच्छा था, मज़ा आता था देखने में, और शायद हमें फिर से दोबारा देखने को मिले। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार
और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके मोटिवेशनल और लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज का एपिसोड देखा। आज कुछ भी साहस पर बोलने का मन नहीं कर रहा है और ना ही अनुपमा पर। अब अनुपमा का चेहरा देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। हमेशा रोती रहती है। बोर हो गए हैं उसके इस रोल से सच में। खुशी में भी रोती है, गम में तो कोई बात ही नहीं। अनुपमा को जन्नत मिल गई आज। सारे शाह हाउस छूटे हुए मिल गए, जिसको 5 साल पहले छोड़कर आई थी। अब फिर से जिंदगी में दस्तक दे रहे हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं है। अनुपमा को अपने कहे शब्द तक याद नहीं है। अच्छा है, माही का दिल एज यूजुअल फिर वनराज शाह ने दुखा दिया। इन 5 सालों में किसी ने अनुपमा को याद तक नहीं किया और उन्हीं से इतना प्यार। नौटंकी अच्छी कर लेते हैं सब भाई, सच में। ये वही सब लोग हैं जिन्होंने परी के बर्थडे का केक अकेले काटा था और कितनी बेइज्जती करके घर से भगा दी गई थी। उन्हीं लोगों के घर में उन्हीं के साथ बैठी है। ये अनुपमा की सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? अनुज के साथ दिखाती है। अगर किसी ने इसका ख्याल रखा है, प्यार किया है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ अनुज कपाड़िया। पर उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई मैडम और घर छोड़ दिया। अब शाह के घर में घुसी हैं। हमको बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है अनुपमा पर, सच में। पाखी, तुम्हारा तोसू भाई चोर है, चोर। किंजल का अधिक के लिए कहना कि उसको आना चाहिए था, तभी ईशानी का कहना मम्मा पापा साथ नहीं रहते हैं। पाखी अनुपमा का कन्वर्सेशन बकवास। क्या बोलें? बच्चे बोली पड़े कि मम्मा वहाँ भी यही करती थी, लड़ती थी। कितने अच्छे पल अनुपमा को नसीब हो रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की थी अनुपमा ने। चेहरे में चमक है, कितनी खुश है ये श्रुति है, एक अच्छी माँ है। अच्छी बात है, ऐसे ही मरो श्रुति तुम। अनुज ऐसे ही तुमसे हाथ छुड़ाता रहेगा। कभी प्यार तुमको मिलने वाला नहीं है अनुज का। और आज से श्रुति की आंखों में कुछ अलग ही चमक दिख रही है। बाबूजी का आशीर्वाद अच्छा लगा। लो, आद्या पाखी फोन पर बात कर रही हैं। अनुपमा वनराज का रवैया देख रही है माही के प्रति। आद्या पाखी आमने सामने टकरा गई और लड़ रही हैं। अनुपमा का कहना ये मेरा परिवार है और वो क्या था जो छोड़कर आई थी। आ गई देवी जी दीपू के रेस्टोरेंट में सॉरी करती हुई। किचन में नौकरानी का काम करते करते दीपू परेशान था और चेहरे की चमक देखो अनुपमा की, कितनी खुश हैं। सो कॉल्ड अपने मायके से मिलकर कितनी खुश हैं। होली इवेंट के लिए हाँ कर दिया दीपू ने। काव्या, डिम्पी, अनुपमा साथ में चाय का आनंद ले रही हैं। काव्या डिम्पी को प्राउड है अनुपमा पर तुम लोगों ने क्या सीखा अनुपमा से? और बीजी जो है दीपू को फ़ोन करके कह रही हैं क्या अनुपमा को बता दिया है? तो ये हुआ चलो होली के बाद बता दिया जाएगा। प्री कैप में देखा होली सेलिब्रेशन चल रहा है और आद्या का कहना यहाँ से चलो शुरू। आद्या अपनी जगह अगर कुछ हद तक देखा जाए तो सही भी है। उसने देखा कि सबके सब शाह हाउस वाले इकट्ठे हैं तो कोई भी होगा उसको चिड़न होगी। अनुज समझा रहा है कि प्रसाद ले लो, पर आद्या का कहना कुछ लोगों को देखकर आई लूज माई टेम्पर और अनुज का हाथ पकड़कर चलती है तो अनुपमा को धक्का लग जाता है। तभी अनुज आद्या का हाथ छोड़कर अनुपमा की तरफ भागता है, पर तब तक दीपू संभाल लेता है। आद्या को बुरा लगा कि पॉप्स ने उनके लिए हाथ छोड़ दिया। उधर किंजल को गुंडे पकड़े हैं। अच्छा है, अनुपमा इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अभी तक पता नहीं किस शुभ मुहूर्त का वेट कर रही थी। जब किंजल पर बीती तब कल के कल ही वापस आना होगा तोशु को। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बकवास लगा। अनुपमा का रोना धोना वही सब स्टार्ट हुआ है। किंजल पूछती है कि अधिक कहाँ है। तब वनराज बोलता है कि थोड़ा टाइम के लिए बाहर गया है अधिक। तब तक ईशानी बोलती है कि पापा हम लोग के साथ में नहीं रहते। तब पाखी बोलती है कि हम लोग अलग हो चुके, मैं अधिक से अलग हो चुकी हूँ। तो अनुपमा बोलती है कि क्यों और कैसे और कब। तो पाखी बोलती है कि आपको क्या मतलब है उससे, क्यों जानना है आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। को तो हमारी फिक्र भी नहीं थी। हम लोग को तो नहीं मालूम था कि आप कहाँ हो। आपको तो मालूम था ना कि हम लोग इधर ही है। अरे बहुत बदतमीज है, आज तक सुधरी नहीं है। माँ बन गई फिर भी नहीं सुधरी है। इधर इंडिया में अभी अधिक को फंसा के आई है। इधर अनुपमा चारों बच्चे लोग के साथ हक कहती है। आज सीन अच्छा लगता है थोड़ा।
बापूजी का और अनुपमा का बातचीत। बापूजी बोले मैं तेरी इतनी चीज़ों का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसके अकेले रहना था इसीलिए मैं तुझसे मिलने बहुत कोशिश किया कि मैं तुझसे मिलने आऊँ, पर मन नहीं माना उधर। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम इस कोशिश का उसके पास तो ये करना चाहिए। मेरी बेटी अकेले रहना चाहती है तो अकेले रहने देना चाहिए। कि मुझे तेरी आवाज़ सुननी होती थी तो तेरा जोशी बहन के नाम से जो कुकिंग वाला रहती था मैं वो देख लिया करता था, और जब तेरी याद आती थी तो खाना बनाने लगता था। मुझे देखने का मन करे तो देविका को फ़ोन करके बोल देता था तो तुझे देख लेता था एक झलक। उधर बापूजी का सीन थोड़ा बहुत इमोशनल था थोड़ा। फिर बा बोलती है कि तू तो जानता है ना बनराज को, कि तू तो जानता है कि तेरे बापूजी को अनुपमा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इधर अनुज, श्रुति और आद्या का सीन दिखाया, एकदम बकवास लगा पूरा। इधर डिनर कर रहे होते हैं और अनुज फोन पे रहता है। आद्या और श्रुति एक दूसरे को इशारे करते हैं कि अनुज से कैसे पूछे। फिर इधर श्रुति अनुज का हाथ पकड़ती है उस टाइम, वो बहुत बकवास लगता है क्योंकि अनुज खुद अनकंफर्टेबल फील कर रहा है उधर। समझ नहीं आ रहा कि अनुज कर क्या रहा है। तेरा अब शादी के लिए बोल चुका है, हाथ पकड़ती है, हक करती है तो उसको बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन बाद में तो उसकी वाइफ बन जाएगी तब क्या करेगा वो। तो उसका पूरा हक होगा ना श्रुति का, तब कहाँ भागेगा और कहाँ भाग के जाएगा अनुज। फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करता है जल्दी। आद्या 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 बहुत गुस्सा आता है उसको देख के। कल 2 जन का ऑडियो सुनकर बहुत अच्छा लगा था, मुद आंटी का और ख्याति आंटी का। उन्होंने जो कहा वो सही कहा अनुपमा के बारे में। अनुपमा से डायलॉग ये दिलाते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिर से अपने परिवार के साथ इस तरीके से मिलूंगी, उनके साथ ये पल को जीऊंगी दोबारा। अनुपमा के साथ जो होता है ना वो सब इसकी गलती की वजह से ही होता है। 5 साल घर में बंद रह के उसको फिर भी आज तक सुधरी नहीं है वो सब चीज़ों से। हाय मेरी फैमिली कर रही है, तो फिर वो 5 साल वो घर में बंद रहने का मतलब क्या निकला यहाँ पे। ये कि वो धीरे धीरे काम की होती तो आगे इतना बढ़ चुकी होती हो। उसके बातों में सिर्फ फ़र्क है, बाकी का किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है उसके अंदर। मैं अपने परिवार के साथ रहूँगी, बहुत सारी खुशी पर क्या है ये कि इधर दोनों की टक्कर होती है। पाखी तो अभी यूएस में सेटल होने की बात कर रही है। आद्या देखती है तो पाखी दीदी, पाखी बोलती है अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता है। आद्या बोलती है कि मैंने आपकी वजह से बहुत कुछ खोया है, कि अभी खोने के बाद ये हाल है कि आज तक सुधरी नहीं है। ये भी ये लोग जो एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे थे उसमें कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। आद्या का एक तरफ बोला कि मैंने आपकी वजह से सब कुछ बहुत कुछ खोया है, फिर अनुपमा का इंसल्ट भी कर देती है। अब जो खोते हो उसको पाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है, वो मेहनत तो दिखाई नहीं देती है आद्या की तरफ से। श्रुति आ जाती है तो आपने अपनी बेटी को क्या मेहनत सिखाए हैं, तब तक आद्या बोलती है आपकी मम्मी ने क्या सिखाया, तो बोलती है मेरी मम्मी के ऊपर मत जाओ, आप भी मेरी मम्मी के ऊपर मत जाओ। अनुज अनुपमा जिसके लिए बलिदान दे रही है वो बलिदान क्या है आद्या के लिए, कुछ भी नहीं। आद्या का ये डायलॉग कि आपके इर्द गिर्द जो रहेगा ना, श्रु आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, इसके आसपास जो रहते हैं वो सॉरी खुद कि ये सॉरी डिजर्व नहीं करता, इससे जुड़ा हुआ इंसान सॉरी डिजर्व नहीं करता, तो फिर आद्या क्यों इतना एथी करती रहती है। जो तकलीफ देने वाली बात कर रही है कि आप सिर्फ हर्ट करते हो तो ये भी तो वही करती है। पाखी बोलती है कि पता नहीं कितने सालों से जानती है ऐसे बात कर, यहाँ नहीं आना चाहिए था, आई हो तो मेरे रास्ते में बताना कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग दोनों ने मिलकर ना अमेरिका को खरीद के रखा है। आद्या का बात वैसी ही लगा। इधर काव्या और डिम्पी बोलते हैं कि आप इंस्पिरेशन हो मम्मी। डिम्पी बोलती है आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो हो रहा है शायद 5 साल पहले भी वही सब होता। अनुपमा 5 साल के बाद भी रिश्तों में ही उलझ के रह गई है। बापूजी बोले रहते हैं कि वो लोग भी कि घर में बच्चे लोग की किलकारियाँ तो गुजती हैं, वो लोग ने भी समझौता कर लिया है। अनुपमा काव्या और डिम्पी से भी पूछती है कि आप लोग कैसे हो। प्लीज अनुपमा को इस सब जॉनर से निकाले यहाँ से। मैं माँ हूँ, मेरी वजह से ये हो गया, मेरे बच्चों लोग के साथ में वो हो गया, ये सब चीज़ों से निकले अनुपमा बाहर। सुधारे लोग को, अब कम से कम अब तो सुधारे अपने बच्चे लोग को। हर अच्छा बुरा रूप एक बच्चे के लिए, बच्चे को सुधारने के लिए ही होता है वो, उसका बच्चा ऐसा हो कि जिसको उस माँ बाप को प्राउड फील होए। बचपन में बच्चे लोग, हम लोग को भी इनसिक्योरिटी होती है कि भाई लोग से मम्मी ज़्यादा भाई से प्यार करती है, हमसे प्यार करती है, ये चीज़ें होती है बचपन के टाइम पे। बचपन में यदि माँ मार देना तो हम लोग को लगेगा कि जैसे वो माँ हम लोग से प्यार नहीं करती है, कि वो भाई हो या बहन, उसके अलावा हो ना तो बोलेंगे कि उससे बहुत प्यार करती है, हम लोग से कम करती है। यदि हमारे गलती पे मारती है तो हम लोग को लगता है कि हम लोग गलत कहाँ हैं, क्योंकि बचपन में तो किसी को भी सही गलत का अंदाज़ा होता नहीं है। लेकिन जब बड़े होते हैं तब मालूम पड़ता है कि माँ ने क्यों मारा था हम लोग को।
प्राउड फील होना चाहिए बच्चों लोग को अपने माँ बाप के ऊपर। उस माँ बाप का साथ है हम लोग के ऊपर, उनका हाथ है हमारे ऊपर। जो हम कुछ गलती भी करते तो हम लोग को ये मालूम होता है कि हम माँ बाप है हम लोग के पीछे। लकी फील करना चाहिए कि माँ बाप का साथ भी है हम लोग के पास, प्यार भी है। प्लीज अनुपमा एक माँ के फॉर्म में वापस आई, बहुत अच्छा लगेगा उसको देखते हुए। लोग बोलते हैं कि अनुपमा सारे रिश्ते छोड़ के आ गई थी, लेकिन जो आज हो रहा है वो शायद 5 साल पहले भी होता। जो कहती है उस बात पर टिकती नहीं अनुपमा, कि सबके आते सब भूल गई। फिर परिवार का बोझ सवार हो गया अनुपमा के ऊपर। इतना टाइम अकेली रही है, उसको फिर भी सुधरी नहीं, कि थोड़ा भी अक्ल नहीं आया अनुपमा को कि अब दोबारा ऐसे आदतें ही ऐसी है, इसीलिए बार बार अकेली रह जाती है। जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो तो फायदा उठाएंगे ही उसका। सबसे पहले इस आदिया को सुधारे अनुपमा, बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम इससे सुकून तो मिलेगा। इधर बीजी बोलती है कि अनुपमा को बता दो, होली के बाद बता देना। इतना आसान नहीं है पुत्र बताना। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका वीडियो भी देखा। अनुपमा अब अपने बच्चों के लिए कमर कसेगी उसको सुधारने के लिए। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया कि अनुपमा पहले तोशु को सुधारने वाली थी, पर अभी वो अब पहले आद्या को सुधारेगी कि होली के इवेंट पे जो उसने अनुज के साथ में की है बदतमीज़ी से बात, तो वो उसके लिए अनुपमा उसको सुधारेगी ही। और एक कल का वीडियो था कि लीलाबाग अपनी असली चेहरा आ गया उसका सामने और आ गई अपनी औकात पे। लीलाबाग के लिए तो अनुपमा सिर्फ एक नौकरानी है, वैसे तो वो उसकी हंसी ही उड़ाती रहती है। और एक वीडियो था आपका, श्रुति की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैंने आज का धारावाहिक भी देखा और आज के धारावाहिक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला कि यशदीप जी खुद दर्द में है, बीजी ने उनको बोला भी कि अनुपमा को बता दो, तो भी वो अनुपमा आज खुश है तो वो अनुपमा को अपना दुख की बात नहीं बता रहे। दूसरा, बापूजी का ये सपना है कि अनुपमा भी एक सेलिब्रिटी बने और अनुपमा को जो लोग बेवकूफ़ या इमोशनल फूल समझते हैं वो उसके आगे पीछे वो। और पाखी की आज भी बदतमीज़ी, पाखी और आद्या के बीच में जो बदतमीज़ी से बातचीत हुई, तो आद्या तो पहचान गई पाखी को, पर पाखी का रास्ते पर इस तरह से चलना जैसे वो इंडिया के अहमदाबाद के रास्ते पे चल रही है, ना कि अमेरिका के जाने पहचाने रास्ते पर चल रही हो, वो देखकर थोड़ी सी मुझे हंसी आई अंजू जी। और आद्या का पाखी को ये कहना कि ये और इससे जुड़े कोई भी लोग सॉरी या कुछ कहने के लायक नहीं है। तब श्रुति ने सिर्फ ऐसा कहा कि मैंने तुमको ये नहीं सिखाया बड़ों से ऐसे बोलना, इसकी जगह अनुपमा होती तो शायद कुछ और ही सिखाती। अनुपमा को बापूजी ने ना चाहते हुए भी माही और वनराज के रिश्ते के बारे में और डिम्पल के अंश के लिए तड़प रही है या अकेली है, वो मुझे लगता है कि बापूजी ने बता दिया है। और पाखी को अभी अमेरिका में ये मैं बिज़नेस सेट करूँगी, ऐसा करूँगी, मुझे अधिक से छुटकारा मिल जाएगा। अंजू जी, मुझे जहाँ तक पता है कि हम पर किसी भी तरह का केस चल रहा हो तो हम देश छोड़कर नहीं जा सकते, तो ये पाखी अमेरिका कैसे आ गई है ये मुझे आश्चर्य लगता है। और अनुज के घर में अनुज, श्रुति और नाश्ता कर रहे थे आद्या, तभी आद्या का उसके फ्रेंड्स को घर में बुलाने के लिए एक दूसरे का इशारा करना, अनुज के ने ज़बरदस्ती हाँ बोल दी। फिर अनुज बोल रहे हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तब श्रुति जानबूझ के उसका हाथ पकड़ती है, आई लव यू बोलती। अनुज ने उससे आई लव यू नहीं बोला, फिर भी उसे अभी आशा है कि एक ना एक दिन वो होगा ही। और श्रुति अभी पॉजिटिव सोच रही है कि गिलास आधा तो भरा हुआ है ना, आधा खाली है ऐसा नहीं सोच रही है, वो नेगेटिव सोच होती है, ठीक है। पर किंजल को अभी बार बार ये लग रहा है कि अब तोशु का क्या होगा। बच्चों की किलकारियों से घर में खुशियाँ छा गई, पर वनराज
को अभी अंश को अपने पास बुलाता देख के माही का परेशान होना, तो अनुपमा ने ये सब नोटिस भी कर लिया था। और अनुपमा को अंजू जी मैं नहीं चाहती कि ये इनके समस्याओं का समाधान करे, इन लोगों को रास्ता दिखाए, इनके साथ ना रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। और किंजल सॉरी पाखी सॉरी काव्या और रिम्पल किंजल के से एड्रेस लेके स्पाइस एंड चटनी में पहुंच जाती हैं। और स्पाइस एंड चटनी में अनुपमा ने जब आई तब लेट हो गई थी, तो यशदीप जी को कहा कि मैं होली का एक इवेंट करना है हमें। तो यशदीप जी ने कहा कि हाँ, हमारे परदेशियों के पास में यही त्यौहार का ही होता है। इन लोगों को बताना तो पड़ेगा कि रेस्टोरेंट का बंद करने की वो है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ को बताना तो पड़ेगा कि वो उनके ऊपर जो डिपेंड है। अनुपमा नहीं बंद होने देगी। आपने 2 दिन पहले के अपने वीडियो में बताया था, अनुपमा स्पाइस एंड चटनी को किसी भी कीमत पे बंद नहीं होने देगी। चाय का मसाला या डांस करके इन लोगों का लोन का वो चुका देगी। नए आने वाले प्रोमो में किंजल की किडनैपिंग और आद्या का अनुज के साथ में बदतमीजी का व्यवहार दिखाया जाएगा। और अनुपमा को जिस तरह से उसने धक्का दिया तो उसके पॉप ने उसका हाथ छोड़ दिया, अनुपमा के लिए मेरा हाथ छोड़ दिया, वो बहुत बदतमीजी करेगी अनुज के साथ में भी। और यशदीप जी ने उसे बचा लिया है अनुपमा को गिरते हुए। ये देखकर अनुज सह नहीं पाए। मुझे लगता है अंजू जी ये मान की लव स्टोरी शुरू होगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच रानी जी। आपने कहा कि आपको हिंदी नहीं आती, उसके बावजूद आपने इतने मोटिवेशनल कमेंट देने के लिए। और ख्याति जी, कुसुम जी, कुमुदिनी जी, वर्षा जी, आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ भेजने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अनुपमा पे गुस्सा आ रहा है सबको, और गुस्सा जल्दी ही ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि ये धारावाहिक है और धारावाहिक में अनुपमा को जैसे जैसे आगे बढ़ाया जाता है, पीछे खींचा जाता है, वैसे वैसे हमारे इमोशंस भी साथ साथ चलते हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। बाकी जिन्होंने अभी तक रिव्यूज़ नहीं भेजे हैं उनके लिए मैं अब नंबर शेयर करती हूँ जिस पे आप भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज़, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.